سب سے پہلے جو میں بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس ویڈیو میں ایسی زبان استعمال کرنے والا ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے، اور ہو سکتا ہے کوئی مجھ سے یہ کہے کہ ایسی زبان استعمال کرنے کی کیا وجہ ہے۔ تو اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا، ہم اس کا احترام نہیں کرتے، نہ کرنے والے ہیں، بلکہ گستاخ رسول اگر میرے ہتھے چڑھ جائے تو انشاءاللہ میں اسے مار کے ہی رہوں گا۔ تو رہی بات ان گستاخ رسولوں کی، چونکہ یہ ان کی ماں کی غلطی ہے، ان کی ماں نے گندا کام نہ کیا ہوتا تو شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ نہ ہوتے۔ تو جیسا کہ میں اپنے اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ گستاخ رسول کی حقیقت کیا ہے اور گستاخ رسول کون ہوتا ہے، تو یہ جو ویڈیو ہے یہ اس حرام نسل کی پیداوار کے جواب میں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کافی گندا اور غلیظ کانٹینٹ اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم یہ اپنے ویڈیوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا رہتا ہے۔ اپنے ایک ویڈیو میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ گستاخی کی۔ اس کے ایک ویڈیو کا جواب میں پھر سے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ میرا یہ ویڈیو جب یہ آدمی دیکھے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اور میرا اس کو چیلنج ہے کہ آئے جیسس کرائسٹ کی ڈیونٹی پر اس کو ڈیبیٹ کر رہا ہوں کہ جیسس کرائسٹ گاڈ ہے یا نہیں ہے۔ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، تمہارے چینل پر لائیو ڈیبیٹ کریں گے۔ جیسس کرائسٹ کروسیفائی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، میں تمہارے ساتھ تمہارے ہی چینل پر لائیو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سینٹ پال جسے پولس کہا جاتا ہے اردو میں، وہ ایک جھوٹا کذاب آدمی، دھوکے باز اور فراڈ آدمی تھا، یہ میں بائبل سے ثابت کروں گا، اس کی کتاب سے۔ اگر اس کو چیلنج ایکسپٹ ہے اسی کے چینل پر لائیو ڈیبیٹ کو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ جیسس آف دا نیو ٹیسٹمنٹ، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں جس جیسس کو بیان کیا گیا ہے، جس کو پیش کیا گیا ہے، جس کو پولس نے پیش کیا ہے، وہ جیسس اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق فالس ہے۔ اس بات پر میں اس کے ساتھ اسی کے چینل پر لائیو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا چیلنج ہے اس کو کہ آئے اور اپنے ہی اسی کے چینل پر لائیو ڈیبیٹ کریں گے ان ساری ڈیبیٹس پر، اور یہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹاپک چوز کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ آئے جیسس کرائسٹ کو یہ ڈیفینڈ کرے، نیو ٹیسٹمنٹ کے جیسس کرائسٹ کو یہ ڈیفینڈ کرے، اپنی بائبل کو یہ ڈیفینڈ کرے۔ میں بائبل میں ثابت کروں گا اس کے چینل پر، میں اسی کو ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کرتا ہوں کہ میں ثابت کروں گا کہ بائبل ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، اسپیشلی نیو ٹیسٹمنٹ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فیبریکیشنز ہے، لوگوں کی من گھڑت کہانیاں، اس میں بے شمار کانٹرڈکشنز ہے، بہت سارے جھوٹ ہے، ہسٹوریکل ایررز ہے، یہ چوچو کا مربع ہے۔ چیلنج کرتا ہوں میں اس کو، اور یہ بھی اپنی طرف سے جس ٹاپک پر میرے ساتھ بات کرنا چاہے میں اس کے ساتھ اسی کے چینل پر لائیو ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آئے یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے جیسس کو ڈیفینڈ کرے، میں سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفینڈ کروں گا اور دین اسلام کو ڈیفینڈ کروں گا۔ اسی کے چینل پر لائیو سٹریم میں ڈیبیٹ کے لیے چیلنج ہے میری طرف سے اس ملعون اور حرام کی نسل کو۔ میں ایک بات یہاں پر کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم مسلمان، میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ایک بہت بڑے پیغمبر تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت عظیم مقام عطا کیا، ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی بہت عظیم مقام عطا کیا ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کے گستاخ کو واجب القتل سمجھتے ہیں۔ یہ بات آپ کلیئر سمجھ لیں، ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے، نہ کہ کوئی جیسس کرائسٹ ہے، کوئی یسوع ہے جو کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جس کا ذکر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ جس جیسس کرائسٹ کو یا یسوع مسیح کو نیو ٹیسٹمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، جس کو پولس نے پیش کیا ہے، اس کا قرآن مجید کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ نیو ٹیسٹمنٹ میں جس جیسس کرائسٹ کو پیش کیا گیا ہے وہ کوئی ہسٹوریکل فگر نہیں ہے۔ ہسٹورینز اس بات پر متفق ہے کہ جیسس کرائسٹ نے کبھی بھی ڈیوائن ہونے کا کلیم نہیں کیا، کبھی بھی گاڈ ہونے کا کلیم نہیں کیا۔ ایک فیمس اسکالر ہے ڈاکٹر بارڈی اہرمن، کرسچنز اس کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کوٹ کرتے ہیں، عقل کے اندھے۔ لیجئے ان سے بھی ایک بیان سن لیجئے۔ ہو گیا۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا یہ جو جیسس ہے یہ وہ جیسس ہے جس کو پولس نے پیش کیا ہے، پولس نے کریٹ کیا ہے، فیبریکیٹ کیا ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پولس کا کہنا ہے کہ میری انجیل کے مطابق یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور 3 دن بعد کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ میرا چیلنج ہے کرسچنز کو اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دکھا دے کہ مسیح علیہ السلام انسانیت کے گناہوں کے لیے مریں گے اور 3 دن بعد وہ جی اٹھیں گے۔ ایسا ایک پیسج مجھے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے دکھا دے۔ سارے کرسچنز کو چیلنج ہے میرا، نہیں دکھا سکتے۔ یہی پولس کے جھوٹے مکار ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پولس خود کہتا ہے رومنس 3:7 میں کہ اس نے جھوٹ بولے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جیسس کرائسٹ کروسیفائی کیے گئے۔ تو جس جیسس کرائسٹ کا نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ وہ ہے، وہ ہسٹوریکل فگر ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، نہ کہ ایک فکشنل کیریکٹر کا جس کو پولس نے فیبریکیٹ کر کے دنیا کے سامنے اپنے لیٹرز میں پیش کیا ہے۔ اپنے اس ویڈیو میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری گستاخیاں کی، جن احادیث کو اس نے تخت نشان بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، ان کی گستاخی کرنے کے لیے۔ ذرا سنتے ہیں اور پھر ان کا جائزہ لیتے ہیں۔
نبی اس قدر گندگی والے پانی کے اندر وضو کرتے تھے جس کے اندر مرے ہوئے کتوں کا گوشت ہوتا تھا اور حیض کے گندے کپڑے ہوتے تھے جس کے اندر سے بہت ساری بدبو آتی ہے، اور لکھا ہوا ہے احادیث میں کہ بدبودار چیزیں ہوتی تھیں اس پانی کے اندر۔ اور نبی سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کیوں اتنے گندے پانی میں آپ رہے، تو نبی نے جواب دیا کہ پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا، پانی ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ آپ اس احادیث میں پڑھ سکتے ہیں۔ سنن النسائی 327 کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی وضو کرتے تھے ایسے گندے پانی کے اندر جہاں پر حیض کے گندے کپڑے اور کچرا پھینکا جاتا تھا۔ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 67 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پخانے اس پانی کے اندر ڈالے جاتے تھے اور یہ پانی نبی نے اپنے منہ کے اندر لیا۔ میرے مسلمان دوستوں کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایسے نبی کو فالو کرتے ہیں جو کہ گندا پانی، پخانے کا پانی اپنے منہ میں اور ناک میں ڈالے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ میرے تمام مسلمان دوست سن رہے ہیں، ایک بار ذرا ٹھنڈے دل سے ضرور سوچیے گا اور ضرور اس پہ عمل کیجیے گا کہ کیا آپ ایسے شخص ہیں جو آپ خود اس سنت پہ جو نبی نے کرا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ پخانے والے پانی کو اپنے منہ میں لے سکتے ہیں؟ میں یہ چیلنج کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا مسلمان شخص نہیں جو اس سنت کو پورا کر کے دکھائے کہ پخانا والا گندا پانی اپنے منہ میں لے یا اپنی ناک میں ڈالے یا اس پانی سے منہ بھی دھوئے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وضو میں منہ بھی دھویا جاتا ہے۔ جس حدیث کو اس نے تخت نشان بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے، وہ سنن نسائی حدیث نمبر 327 پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے یہی روایت سنن ابو داؤد حدیث نمبر 66 اور 67 پر موجود ہے، اور اسی طریقے سے یہی روایت سنن ترمذی حدیث نمبر 66 پر موجود ہے۔ ہمارے یہاں مسلمان کے یہاں اسلام میں احادیث کو ایکسیپٹ کرنے کے کچھ اصول ہے، اصول حدیث ہے، جسے انگلش میں سائنس آف حدیث کہا جاتا ہے۔ تو جو اصول احادیث کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے محدثین نے بنائے ہیں، اگر ہم وہ اصول بائبل پر لاگو کریں، خاص طور سے نیو ٹیسٹمنٹ پر لاگو کریں، تو کرسچینٹی سارے سے ہی ختم ہو جائے گی، کرسچینٹی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ احادیث کو ایکسیپٹ کرنے کے جو اصول ہے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں نے احادیث سنی وہ صحابہ تھے، صحابہ سے جن لوگوں نے احادیث سنی وہ تابعین تھے، اسی طریقے سے لوگوں تک احادیث پہنچتی رہی جسے چین آف نریشنز کہا جاتا ہے یا سند کہا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے یا کسی حدیث کی سند میں یا احادیث کی سند میں جو راوی ہوتے ہیں ان کو پرکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی راوی جھوٹا تو نہیں، کہیں کسی راوی کے حافظے میں کوئی خرابی تو نہیں، مطلب اسے کچھ میموری ایشو تو نہیں ہے، کہیں کوئی راوی حدیث بیان کرتے ہوئے غلطیاں تو نہیں کرتا ہے، کہیں کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے کہ جو حدیث بیان کرتا ہے لیکن اسے وہم ہو جاتا ہے، کہیں کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے جو حدیث میں اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیتا ہے، کہیں کوئی راوی ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایک ایسے آدمی سے حدیث بیان کر رہا ہے جس سے اس کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہو، یا کہیں کوئی راوی ایسی روایت تو بیان نہیں کر رہا ہے کہ وہ جس سے سننے کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے حدیث وہ سنی ہی نہیں ہو۔ تو یہ کچھ اصول ہیں جن میں مختلف احادیث شامل ہے۔ اصول حدیث کی روح سے احادیث کی دو قسمیں ہیں، صحیح اور ضعیف، پھر آگے اس کی اقسام چلتی ہے صحیح میں بھی اور ضعیف میں بھی۔ تو ضعیف میں کچھ ہے، مثال کے طور پر ضعیف احادیث میں موضوع روایات شامل ہے جنہیں من گھڑت یا فیبریکیٹڈ حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مضطرب احادیث یعنی جن کی سند اور متن میں اختلافات ہو۔ اسی طریقے سے ضعیف روایت کی ایک قسم مقلوب ہوتی ہے، یعنی جس کی پوری سند ہی غائب ہو یا آدھی سند غائب ہو۔ ضعیف روایت کی ایک قسم معزل ہوتی ہے، یعنی جس کی سند کے بیچ میں سے دو یا اس سے زیادہ راوی چھوٹ گئے ہوں۔ اسی طریقے سے ضعیف روایت کی ایک قسم منقطع ہوتی ہے، یعنی دو راویوں کے بیچ میں ایک واسطہ ہوتا ہے اور وہ چھوٹ گیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ضعیف روایت کی اقسام میں ایک روایت ایسی ہے جس میں راوی نے تدلیس کی ہوتی ہے، یعنی راوی اس طریقے سے روایت بیان کرتا ہے کہ جس سے وہ سننے کا دعویٰ کر رہا ہوتا ہے اصل میں اس نے وہ روایت اس سے نہیں سنی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ضعیف روایت کی ایک قسم ہے مضطرب، یعنی جس کی سند اور متن میں اختلاف ہو، اور ہماری جو بیان کا روایت ہے جس کو اس نے تخت نشان بنایا ہے یہ اضطراب کا شکار ہے، جس پر ہم آگے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ضعیف روایت کی اور بھی اقسام ہے، مدرج روایت، یعنی جس میں حدیث کے کسی راوی نے اپنی طرف سے الفاظ ڈال دیے ہو، حدیث بیان کرتے ہوئے اس کو یہ خیال نہ رہا ہو اور اس نے اپنے الفاظ حدیث میں داخل کر لیے ہو۔ اسی طریقے سے ضعیف حدیث کی اور بھی کئی ساری اقسام ہیں جن میں میں نے چاند آپ کے سامنے بیان کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک خاص ویڈیو ہم بنائیں گے سائنس آف حدیث کے نام سے یا اصول حدیث کے نام سے کہ کن اصولوں کے بنیاد پر حدیث کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضعیف حدیث کی اور بھی قسمیں ہیں جس میں کوئی راوی ایسا ہو جو حدیث بیان کرتے ہوئے خطا کا شکار ہو جایا کرتا ہو، یا اس کو حدیث بیان کرنے میں وہم ہوا ہو، یا اس کو کچھ میموری ایشوز ہو، تو ایسی روایت بھی ضعیف ہوتی ہے۔ ضعیف روایت کی ایک قسم شاذ روایت ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک ایسا راوی جو اپنے سے زیادہ پاورفل میموری والے راوی سے، جسے ہم اوثق راوی کہتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے اسے شاذ روایت کہتے ہیں۔ اور اس بدبخت خبیث انسان نے جس روایت کو تحت نشان بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے، وہ روایت سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ میں سندوں کے اختلافات کے ساتھ اور متن کے اختلافات کے ساتھ موجود ہے، جو اس روایت کو مشکوک بنا دیتے ہیں، ناقابل حجت بنا دیتے ہیں، ضعیف بنا دیتے ہیں، مضطرب بنا دیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے جب ہم کسی حدیث کو کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے یا موضوع ہے یا کچھ بھی،
तो उसका मतलब ये होता है कि ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है, ये अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है, ये हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। तो ज़ईफ, जब हम किसी हदीस को ज़ईफ कहते हैं या मौजू कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है, यानी जब हम किसी हदीस को कहते हैं कि ये ज़ईफ है तो उसका मतलब यही होता है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा है, वो अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। अब क्योंकि इस हराम की नस्ल लानती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद गुस्ताखी की है इस वीडियो में, लिहाजा ना तो जाहिर सी बात है मैं इसकी कोई रेस्पेक्ट दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है हम उसकी रेस्पेक्ट क्यों करें। तो आइए हदीस पर बात करते हैं। जिस रिवायत को इसने तख्ते निशान बनाया है सुनन नसाई हदीस नंबर 327 में, उसके अल्फाज हैं अततवज़्ज़उ मिन बि'r बुज़ाअति। इस हदीस के रावी सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ मंसूब रिवायत, अततवज़्ज़उ मिन बि'r बुज़ाअति, के पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप बुज़ा के कुएं के पानी से वुजू करते हैं जबकि उसमें कुत्तों का गोश्त, हेज वाले कपड़े और गंदगी गिरी पड़ी रहती है। और ये रिवायत जैसा कि मैंने कहा इज़्तिराब का शिकार है, ज़ईफ है। देखिए सुनन नसाई के जो अल्फाज है अततवज़्ज़उ, क्या आप बुज़ा के कुएं के पानी से वुजू करते हैं, मतलब इसमें सहाबी जो है सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि क्या आप बुज़ा के कुएं के पानी से वुजू करते हैं, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है कि क्या आप उससे वुजू करते हैं। और सुनन नसाई की इस रिवायत में कहीं पर भी नहीं आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ मैं उस कुएं के पानी से वुजू करता हूं, बल्कि हदीस के एंड पर जो अल्फाज है कि पानी पाक है, इसे कोई चीज नजस नहीं करती, इस हदीस में ये कहीं पर नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैं ऐसा करता हूं। तो आइए इस हदीस के इख्तिलाफ को देखते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 66, इस हदीस के अल्फाज है, यही हदीस है, यही रावी है, सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं अन्नहु क़ीला लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तवज़्ज़उ, अल्फाज याद रखिएगा। सुनन नसाई में अल्फाज है अततवज़्ज़उ, क्या आप वुजू करते हैं, यहां पर अल्फाज है अन तवज़्ज़उ मिन बि'r बुज़ाअता, यानी सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफत किया गया, मतलब उनसे पूछा गया क्या हम बुज़ा के कुएं से वुजू कर लिया करें। यानी इस हदीस के मुताबिक सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछ रहे हैं कि क्या हम बुज़ा के कुएं के पानी से वुजू कर लिया करें, हालांकि उसमें कुत्तों का गोश्त, हेज के कपड़े और गंदगी इंसानी गलाजत पड़ी रहती है। और उसी सनद से उसी रावी से यहां पर सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 66 पर क्या अल्फाज है अनतवज़्ज़उ, यानी सहाबा इस रिवायत के मुताबिक सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं क्या हम बुज़ा के कुएं से वुजू कर लिया करें, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम उस पानी से वुजू कर लिया करें। अल्फाज दिख रहे हैं, दोनों के अल्फाज में कितना डिफरेंस है। आइए सुनन अबू दाऊद की अगली ही हदीस, हदीस नंबर 67 आपके स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने कहा इस हदीस की सनद और मतन दोनों में इख्तिलाफ है, और यहां पर इस हदीस में यही रावी सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही जो कि इस हदीस के मरकजी रावी, मतलब जो साहबी है जो इस रिवायत को बयान कर रहे हैं, इन तमाम सनदों में चाहे वो सुनन नसाई की हदीस हो, सुनन अबू दाऊद की हदीस हो, सुनन तिरमिज़ी की हदीस हो, सुनन इब्न माजा की हदीस हो, मेन मरकजी रावी जिस सहाबी की तरफ यह हदीस मंसूब है वो है सैयदना अबू सईद खुदरी। इस हदीस में अल्फाज देखिए क्या है, इस हदीस के अल्फाज हैं सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा युक़ालु लहू इन्नहु युस्तक़ा लका मिन बि'r बुज़ाअता, यानी सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपको बताया जा रहा था कि आपके लिए जो पानी लाया जाता है वो बुज़ा के कुएं का होता है, हालांकि इसमें कुत्तों का गोश्त, हेज के कपड़े और इंसानों की गलाजत तक डाल दी जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। अब देखिए इस हदीस के जो अल्फाज है वो क्या है, इसमें है वहुवा युक़ालु लहू इन्नहु युस्तक़ा लका मिन बि'r बुज़ाअति, यानी आपको बताया जा रहा था, यानी नाउज़ुबिल्लाह सहाबा किराम की तरफ मंसूब है कि सहाबा किराम उनको बता रहे थे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए जो वुजू का पानी लाया जाता है वो बुज़ा के कुएं का है और उसमें गलाजत पड़ी रहती है। तो यहां पर आपको अहादीस के अल्फाज का डिफरेंस पता चल रहा है कि ये जो रिवायत है इसकी सनदों में भी इख्तिलाफ है और मतन में भी इख्तिलाफ है। सुनन नसाई के अल्फाज है अततवज़्ज़उ, क्या आप बुज़ा के कुएं के पानी से वुजू करते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 66 के मुताबिक अल्फाज है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांग रहे हैं अन तवज़्ज़उ मिन बि'r बुज़ाअता, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम बुज़ा के कुएं से वुजू कर लिया करें, वो इजाजत मांग रहे हैं, हालांकि इसमें इस तरह की गंदगी पड़ी रहती है। जैसा कि मैंने कहा इस रिवायत की सनदों में मतन में इख्तिलाफ है, जैसा कि मैंने आपके सामने शो किया, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ है। उसूल हदीस की रूह से ये रिवायत गैर साबित हो जाती है, ज़ईफ हो जाती है।
तो जैसा कि इस हदीस का इख्तिलाफ मैंने आपके सामने बयान किया, इसी वजह से कई सारे मुहद्दिसीन ने, उलमा ने इस हदीस पर कलाम भी किया है। कुछ मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को सही और हसन भी करार दिया है। शायद उनका इस हदीस के अल्फाज के इख्तिलाफ की तरफ नजर नहीं गई, इस वजह से उन्होंने इसे सही और हसन करार दिया है। लेकिन कुछ मुहद्दिसीन और उलमा ऐसे भी है जिन्होंने इस हदीस पर कलाम किया है, क्योंकि इस हदीस की सनद और मतन में इख्तिलाफ अल्फाज के दरमियान इख्तिलाफ है, जो इसको मुस्तरिब करार देते हैं, जो इसको मशकूक बना देते हैं। लिहाजा इस हदीस की सनद और मतन में इख्तिलाफ होने की वजह से यह हदीस नाकाबिल हुज्जत है, ज़ईफ है। और एक और बड़ी वजह यह भी है कि इस हदीस का एक रावी अननोन है, उसके बारे में कुछ नहीं मालूम कि कौन था, कैसा था, सच्चा था या झूठा था, उसका हाफजा कैसा था। ये रावी मजहूल है, इसकी किसी भी मुहद्दिस से तौसीक साबित नहीं है, किसी ने इसकी तौसीक नहीं की है। लिहाजा ये रिवायत इस उसूल से भी ज़ईफ है। और ज़ईफ रिवायत, ऐसी मशकूक रिवायत जिनमें शुकूक पैदा हो जाए, वो मुसलमानों के नजदीक हुज्जत नहीं हुआ करती। अब इस हराम की गलीज पैदावार को कौन समझाए कि मुसलमानों के नजदीक ऐसी रिवायत हुज्जत नहीं होती और ना ही इनको इस्लाम के खिलाफ बतौर एविडेंस पेश किया जा सकता है। कैसा लगेगा इस आदमी को अगर मैं नॉन कैनोनिकल सो कॉल्ड गॉस्पेल से या उन किताबों से जिनको क्रिश्चियंस ने बाइबल से फेंक दिया है, जिनको प्रोटेस्टेंट्स नहीं मानते लेकिन कैथलिक बाइबल में मौजूद है, इसी तरीके से कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसी गॉस्पेल्स जो फर्स्ट सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी में, थर्ड सेंचुरी में मौजूद थी, लेकिन आज के सो कॉल्ड क्रिश्चियंस उनको नहीं मानते। अगर मैं ऐसे रेफरेंसेस पेश करूं जिनसे ईसाईयत की जड़ ही खत्म हो जाती है, क्रिश्चियनिटी की जड़ ही खत्म हो जाती है। जीसस क्राइस्ट एक इनका तो दावा है ना कि जीसस क्राइस्ट गॉड है, इनका दावा है कि जीसस क्राइस्ट प्रिंस ऑफ पीस थे, वो फुल्ली ह्यूमन और फुल्ली गॉड थे, जबकि ऐसे सोर्सेस मौजूद है जिनसे हमें यह पता चलता है कि जीसस क्राइस्ट ने बच्चों की जान ली है, बच्चों की, मासूम बच्चों की जान ली है। ओल्ड टेस्टामेंट का गॉड कौन है? क्रिश्चियंस के मुताबिक वो जीसस क्राइस्ट ही है, क्योंकि इन्हीं का तो इनका दावा है ना। क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ओल्ड टेस्टामेंट के गॉड है, और ओल्ड टेस्टामेंट में क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक जीसस क्राइस्ट ने प्रॉफिट मोसेस यानी मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम औरतों का रेप करो, बच्चों को कत्ल करो, जानवरों को कत्ल करो, घोड़ों को कत्ल करो। ये इनका गॉड है, ये तो बाइबल में मौजूद है ये वाला रेफरेंस। और बच्चों को कत्ल करने का जो एविडेंस है वो नॉन कैनोनिकल है। तो कैसा रहेगा अगर मैं ऐसे ही एविडेंसेस तुम्हारे खिलाफ पेश करूं? क्या तुम उनको एक्सेप्ट करोगे? ऑफ कोर्स तुम रिजेक्ट करोगे, नहीं हम इन किताबों को नहीं मानते। सवाल यह है कि किसने ये फैसला किया कि न्यू टेस्टामेंट में जो किताबें हैं वो वर्ड ऑफ गॉड है और जो जिनको फेंक दिया गया बाहर वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है? ये फैसला किसने किया? किसने तुमको ये बताया? तुम्हारे पादरियों ने। और किसने बताया? खुदावन ने आकर तो खुद नहीं बताया, यसू ने तो आकर खुद नहीं बताया ना। लोगों ने ये किताबें लिखकर बोल दिया, जैसा कि पौलुस ने भी लिखा है कि मैंने ये जीसस क्राइस्ट से हासिल की है, मतलब खुद ही दावा कर दिया कि ये खुदा का कलाम है, हालांकि कोई एविडेंस नहीं है इस बात का। तो कैसा लगेगा कि अगर हम ऐसी ही नॉन कैनोनिकल गॉस्पेल से मैं ऐसे एविडेंसेस तुम्हारे सामने लाकर पेश कर दूं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? सुनन इब्ने माजा 3278 के अंदर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे हाथ से कभी लुकमा नीचे गिर जाए जमीन पर और वो जमीन पे गंदा है, तुम उसको उठाकर गंद को साफ करके उसको खा सकते हो, वरना ये शैतान खा लेगा। और आप अपनी जिंदगी में कभी भी एक ऐसा भी मुसलमान नहीं देखेंगे जो इस सुन्नत पे अमल करे, कभी भी गंद उठाकर मुंह में नहीं डालेगा बल्कि खाना फेंक देगा। फिर से ज़ईफ हदीस। इस हदीस के पहले रावी सुवैद बिन सईद ज़ईफ है और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ने माकिल बिन यसार से नहीं सुना, लिहाजा यह सनद भी ज़ईफ है। इस्लाम और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये ज़ईफ और मरदूद रिवायात पेश करके आखिर तुम साबित क्या करना चाहते हो? यही ना कि तुम एक झूठे, मक्कार और धोखेबाज आदमी के फॉलोवर हो। उसका तो काम ही यही था पौलुस का, झूठ बोलना, लोगों को धोखा देकर मसीह अलैहिस्सलाम के नाम पर अपना फॉलोवर बनाना, और तुम भी उसी के चमचे हो। लिहाजा ये रिवायत भी गई गड्ढे में, ये भी ज़ईफ है, इसका भी कोई काम नहीं आने वाला। रही बात खाना नीचे गिरकर खाने की, तो सवाल यह है मेरा तुमसे, तुम्हारी अक्ल तुम्हारे पिछवाड़े में है या फिर सर में ही है? क्योंकि खाना खाते समय इंसान एक जगह बैठा होता है, ना कि रास्ते में चलते हुए खाना खाया जाता है। ये तो खाना खाने के आदाब के ही खिलाफ है। तो हदीस का मतलब यहाँ पर यह वाज़ह है कि इंसान जहां पर बैठकर खाना खा रहा है, और मुसलमानों के यहाँ खाने के आदाब में से यह है कि दस्तरख्वां पर खाना खाया जाए। तो अगर लुकमा हाथ से गिर जाता है और दस्तरख्वां पर गिर जाता है, फिर आदमी उसको साफ करके खा लेता है, तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? इसी तरीके से अगर दस्तरख्वां नहीं भी बिछा है, लुकमा नीचे गिर जाता है, फिर उसको साफ करके आदमी खा लेता है, तो इसमें कौन सी हर्ज की बात है? लगता है क्रिश्चियंस के घरों के अंदर टट्टी लगी रहती है फर्श पर बिछी हुई, इसलिए अपना लुकमा उठाकर खा नहीं सकते। पहले अपनी इस बाइबल में घर पाड़ी हुई गलाजत को देख, फिर इस्लाम पर उंगली उठा। भरवे की औलाद, गलीज पैदावार। अगर मुसलमानों के हाथ से लुकमा गिर जाए और वो उठा करके उसे खा ले और तुम्हें इस पर एतराज है, जबकि यसू ने क्या कहा है? जरा सुन, पढ़। मार्क चैप्टर 7 वर्स 15 में लिखा है कि कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। क्या लिखा है? कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। इस तालीम पर अमल करने के लिए तैयार है। जब कोई भी चीज, वाज़ेह तौर पर लिखा है कोई चीज, मतलब कोई भी चीज हो, वो बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। इस हिसाब से तो तुम कुत्ता खा लो, चूहा खा लो, बिल्ली खा लो, गटर के कीड़े खा लो, हर किस्म की गलाजत खा लो,
तुम्हें तो कोई रोकथाम नहीं है ना, क्योंकि यसू ने तो कहा है कि कोई भी चीज बाहर से इंसान में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। और तुम्हें मुसलमानों के नीचे से लुकमा उठाने पर एतराज है। तुम्हें तो इस हिसाब से टट्टी तक खा लेनी चाहिए जानवरों की, तुम्हें तो इस हिसाब से गोबर तक खा लेना चाहिए, सुअर का गू तक खा लेना चाहिए, हर किस्म की टट्टी खा लेनी चाहिए। और तुम्हें इस हदीस पर एतराज है, तुम्हें इस्लाम पर एतराज है। अबे हराम की नस्ल इसीलिए कह रहा हूं, पहले अपनी बाइबल का मुताला कर अच्छी तरीके से। मैं जानता हूं तुम्हारा जो दिमाग है पिछवाड़े में भरा है, और तो हराम की नस्ल है इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि सुअर खाते हो ना, इसीलिए तुम अपनी माँ बहन बेटियों बीवी को भी दूसरे आदमियों के साथ शेयर करते हो। चल अब अमल करके दिखा, इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं कही ना यसू ने कि अगर लुकमा नीचे गिर जाए तो उसे उठाना नहीं है, इसके मुताबिक तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि यसू कह रहे हैं कि कोई भी चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। तो खाना तुझे तो फिर हर किस्म की गंद और गलाजत खानी चाहिए। खा हराम की नस्ल, अमल करके दिखा। तो अब खाओ कुत्ता, क्योंकि कोई चीज तो इंसान को नापाक नहीं करती ना। खाओ चूहे, खाओ गटर के कीड़े, खाओ गंदगी और गलाजत, क्योंकि कोई चीज इंसान को नापाक नहीं करती। खाना खा, भड़वे की औलाद हराम की नस्ल खा, और जीसस की तालीमात पर अमल कर। अगर नहीं कर पाया तो तेरे हरामी होने में मुझे उम्मीद है तेरे क्रिश्चियन व्यूअर्स को भी कोई शक नहीं होगा। लिहाजा ये एतराज भी मरदूद हो गया। हमेशा मुसलमान बहुत खुश होते हैं बोलकर कि हम बैठकर पेशाब करते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं खड़े होकर पेशाब करना गंदगी का काम है? मगर नबी ने क्या किया आज मैं आपको बताता हूँ। सही बुखारी 224 के अंदर नबी इतने पाकीज़ा थे कि उन्होंने खड़े होकर पेशाब किया। और खड़े होकर पेशाब करना एक सुन्नत है जो कि आज के मुसलमान को नहीं पता, और वो बैठ के करता है। तो कोई भी मुसलमान में इस वीडियो का जवाब दे सकता है? ये भी एक अजीबोगरीब एतराज है। खड़े होकर पेशाब करना कौन सी बड़ी बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर बैठकर ही पेशाब किया करते थे, इसीलिए अपनी उम्मत को भी ये हुक्म देते रहे कि बैठकर पेशाब किया करो। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, उन्होंने बैठकर ही पेशाब किया है अपनी अमूमी जिंदगी में, इसीलिए वो बैठकर पेशाब करने का हुक्म दिया करते थे। रही सही बुखारी की ये रिवायत जिसमें खड़े होकर पेशाब करने का जिक्र है, तो इस्लाम चूंकि तमाम सॉल्यूशंस का हल है, इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए इसके लिए भी राह हमवार करके रख दी, जवाजियत रख ली। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि जहां पर इंसान बैठकर पेशाब नहीं कर सकता, वहां पर खड़े होकर ही पेशाब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर टांगों में कभी कभार दर्द हो सकता है, इंसान बैठकर नहीं कर सकता, खड़े होकर हो सकता है। या किसी ऐसी जगह पर है जहां पर गलाजत बहुत ज्यादा है, बैठकर पेशाब नहीं किया जा सकता, खड़े होकर किया जा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जवाजियत के लिए, अपनी उम्मत की आसानी के लिए ये अमल भी किया, ताकि उम्मत को आसानी रहे, जब उन्हें जिसकी जरूरत पड़े उस पर वो अमल करे। अमूमी तौर पर हुक्म बैठकर पेशाब करने का ही है, और खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठकर ही पेशाब किया करते थे, इसीलिए हुक्म भी बैठकर पेशाब करने का ही दिया करते थे। अब अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खड़े होकर पेशाब नहीं किया होता तो उम्मतियों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती कि मुश्किल हालात में या जहां पर बैठकर पेशाब नहीं किया जा सकता वहां पर क्या करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उसवा हसना है, तमाम इंसानियत के लिए भेजे गए, कयामत तक के लिए वो उसवा हसना है, वो मशअले राह है, उन्होंने अपनी उम्मत के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए आसानी पैदा करके रख दी। तुम बतकाज़े जरूरत खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हो, इसमें एतराज की कौन सी बात है? गांडू आदमी, तू वो गधा है जो अपनी किताब को ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ देख कर पढ़ नहीं सकता, और तू इस्लाम में चला है एक्सपर्ट बनने, तू हमें बताएगा सुन्नत क्या है। लेकिन एक मिनट, तुमने तो बताया ही नहीं कि क्रिश्चियनिटी में खड़े होकर पेशाब करना चाहिए या बैठकर पेशाब करना चाहिए। जरा मुझे बाइबल से दिखाओगे कि बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर पेशाब करना चाहिए, कौन सा तरीका सही है? मुझे यीशु से दिखा सकते हो कि बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर पेशाब करना चाहिए? मुझे पॉल द एसोल से दिखा सकते हो कि बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर पेशाब करना चाहिए? या फिर क्रिश्चियनिटी में इस मसले का भी कोई हल नहीं? हाँ बेचारे, क्या करें, लंगड़े हैं बेचारे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर, उनकी तालीमात पर अमल करने के अलावा इनके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि इस मसले का भी क्रिश्चियनिटी में कोई हल ही नहीं है कि बैठकर पेशाब करना चाहिए या खड़े होकर पेशाब करना चाहिए। चलो दिखाओ बाइबल से, चल हरामी दिखा बाइबल से। हराम की नस्ल, अगर तेरी माँ ने गंदा काम नहीं किया होता ना, और उसके नतीजे में तू पैदा नहीं हुआ होता, तो तू कभी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करता, ना तो अपनी ये गंदी जबान उनके खिलाफ दराज करता। मेरी तुम्हें एक एडवाइस है, अपना डीएनए चेक कर लो, फिर अगर रिपोर्ट वो आए जिसको तुम अपना बाप समझते हो, अगर रिपोर्ट में वही आया ना कि वही तुम्हारा बाप है, तो मैं इस्लाम छोड़कर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना और अपने बाप का डीएनए टेस्ट यूट्यूब पर शो करना होगा कि मैं सच में उसी की औलाद हूं जिसको मैं अपना बाप समझता हूं, वरना मैं खून से अपने लिख के दूंगा तू जिसको अपना बाप समझता है वो तेरा बाप नहीं है, बल्कि तू किसी और ही की नाजायज नस्ल है, गलीज पैदावार है, और ये सब तेरी माँ की गलती है। आज जो आप पानी से साफ करते हैं और समझते हैं कि सुन्नत है, मगर ये असल सुन्नत नहीं। असल में नबी पत्थरों के साथ अपने आप को साफ करते थे जब वो पखाना कर लेते थे। सुनन नसाई में हदीस नंबर 42 के अंदर लिखा है कि नबी को एक बार जरूरत पड़ी पखाना करने के बाद, तो उन्होंने, सहाबा ने उनके लिए 3 चीजें ले आए, जिसमें से 2 पत्थर थे और 1 गोबर था। तो नबी ने गोबर को फेंक दिया और कहा ये शैतान का खाना है, मगर पत्थर को इस्तेमाल करा और उससे अपना पखाना साफ किया। हाँ तो मादर चोद, एक बार जरूरत पड़ी थी ना, तेरी अक्ल तेरी पिछवाड़े में है जो तुझे समझ नहीं आती, एक बार को हमेशा की जिंदगी पर अप्लाई कर रहा है। अब इस हराम की नस्ल को कौन समझाए, गलीज पैदावार को कौन समझाए कि जिस रिवायत में या जिन रिवायात में पत्थरों या मिट्टी के ढीलों से
तहारत हासिल करने का जिक्र है, वो जगह है जहां पर पानी अवेलेबल नहीं था। कौन इस हराम की नस्ल को समझाए कि ये वो जगह थी जहां पर पानी अवेलेबल नहीं था। जब पानी अवेलेबल हुआ करता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से ही पाकी हासिल किया करते थे। इसीलिए पानी से पाकी हासिल करने का हुक्म दिया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तू हराम की नस्ल हमें बताएगा कि सुन्नत क्या है। इसी तरीके से जहां पर पानी अवेलेबल नहीं हुआ करता था, हुक्म नाजिल हुआ कुरान मजीद में, आप तयम्मुम कर लिया करें। तयम्मुम किससे होता है? मिट्टी से होता है। यानी अगर पानी अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज अदा की जा सकती है। अब इस जैसा कोई गधा उठे कि तुम मिट्टी से ही तयम्मुम कर लिया करो, पत्थरों से ही जो है तहारत हासिल कर लिया करो, कौन इस हराम की नस्ल को समझाए? ये वो हराम की नस्ल है, इनकी अक्ल में आज तक ये बात नहीं आई कि 3 एक नहीं होता और 1 3 नहीं हो सकते। लेकिन कौन इन गधों को समझाए, इन खच्चरों को समझाए जिनकी अक्ल इनके पिछवाड़े में है, जिनकी माओं ने गंदे काम करके इनको जन्म दिया है और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। इनके नाजायज और हरामी होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? तो इस रिवायत का भी जवाब हो गया है कि ये रिवायत जो है जिनमें मिट्टी से या पत्थर से तहारत हासिल करने का जिक्र है, तो ये वो जगह थी जहां पर पानी अवेलेबल नहीं था। अगर एक इंसान ने तयम्मुम कर रखा है, फिर उसे पानी मिल जाता है किसी रास्ते पर, लेकिन वो पानी से तहारत हासिल नहीं करता, तो उसका तयम्मुम जो है वहीं पर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि पानी उसको मिल गया, अब उसे पानी से तहारत हासिल करनी है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी से तहारत हासिल करने का हुक्म दिया। और जब पानी अवेलेबल ना हो, मौजूद ना हो, तब क्या करेंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हमारी आसानी के लिए वो भी हमें करके दिखाया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जब पानी तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं हो तो तुम क्या करोगे, ये आसानी रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स के लिए। अच्छा ये बताओ, जीसस क्राइस्ट ने ऐसी हालत में कौन सी आसानी रखी है? अगर तेरे जैसे तुझ भड़वे को ही टट्टी लग गई, जुलाब निकल गए और पानी अवेलेबल नहीं है, तो तू उस वक्त अपनी टट्टी खुद चाटेगा, अपने कपड़ों से साफ करेगा, मिट्टी से साफ करेगा, पत्थर से साफ करेगा, किससे साफ करेगा? बता मुझे इसका हल, बता मुझे क्रिश्चियनिटी में क्या है? इसका हल है क्रिश्चियनिटी में? जीसस क्राइस्ट से इसका हल है कहीं पर? पॉल द फकिंग एसहोल, उसके पास उसने इस बारे में कुछ बताया है? बता मुझे, दिखा मुझे बाइबल से। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्रिश्चियंस पर, और आती भी होंगी, तुझ पर आ गई, ठीक है, तो जो और तू तो लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ बुलाता है ना कि क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करो, जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट करो, और अगर कोई करता है तो उस पर ऐसी हालत आ जाती है, उनको जुलाब लग गए, टट्टी निकल गई, हग दिया उन्होंने, और पानी उनके पास अवेलेबल नहीं है, आसपास ढूंढने के बावजूद भी नहीं मिलता, तो वो इस हालत में क्या करेंगे? किस पर अमल करेंगे? वो मिट्टी से तहारत हासिल करेंगे, वो मिट्टी से अपना पाखाना साफ करेंगे, पत्थर से करेंगे, या अपने हाथ से करेंगे, या अपनी जबान से करेंगे, अगर कर पाए तो, या अपने कपड़ों से करेंगे? क्या सॉल्यूशन है इस मसले का क्रिश्चियनिटी में? भरवे की औलाद, तेरे पास जवाब है ना, तू मर जाएगा, लेकिन इस मसले का कभी क्रिश्चियनिटी में हल नहीं दिखा सकता। क्रिश्चियंस बुलाते तो ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर, जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये बुलाते हैं लोगों को, लेकिन ये खुद ये फॉलो करते और करवाते हैं पॉल को। और पॉल का क्या कहना है? पॉल का यह कहना है कि यसू मसीह मलऊन है। पॉल वो मलऊन है जो मसीह अलैहिस्सलाम पर लानत करता है। लानत एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी, इससे बड़ी कोई बददुआ नहीं, इससे बड़ी कोई गाली नहीं। और पॉल मलऊन मसीह अलैहिस्सलाम पर लानत करता है, खुद मलऊन होकर ये अल्लाह के एक अजीम पैगंबर पर, रसूल पर, नबी पर लानत करता है। जो अंबिया पर लानत करता है, लानती वो खुद होता है, और पॉल खुद लानती था। अब चूंकि ये फॉलो करते और करवाते पॉल को है, मिसाल के तौर पर ओल्ड टेस्टामेंट से हमें पता चलता है कि सुअर खाना हराम है। ओल्ड टेस्टामेंट में 3 रेफरेंसेस मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि सुअर हराम है, लेकिन क्रिश्चियंस, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले, सुअर खाते हैं। अब जब ये सुअर खाते ही हैं तो न्यू टेस्टामेंट से भी अब लेके चलो, यहां से तुमने वहां से बहुत कुछ बता है, अब यहां से भी मुंह तोड़ जवाब सुन के जाओ। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 14 और 15 में लिखा है, और वो लोगों को पास बुलाकर फिर उनसे कहने लगा, तुम मेरी सुनो और समझो, कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। क्या लिखा है? यसू ने क्या कहा? कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती। जब मुसलमान इन सो कॉल्ड क्रिश्चियन से ये कहते हैं कि सुअर खाना हराम है, ओल्ड टेस्टामेंट में साबित है कि सुअर खाना हराम है, मना किया गया है इससे, तो क्रिश्चियंस ऐसे ही रेफरेंसेस हमारे सामने लाकर रख देते हैं कि देखो यसू ने तो ऐसा कहा है कि कोई चीज इंसान को नापाक नहीं करती। और इनको पौलुस ने यह बता दिया है कि यसू स्लेब पर चढ़कर यसू ने शरीयत को मनसूख करार दिया है, लिहाजा उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब तुम लोगों को बस इतना मान लेना है कि जीसस क्राइस्ट हमारे गुनाहों के लिए मसलूब किए गए, क्रूसीफाई किए गए, और वो 3 दिन बाद जी उठे, तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, किंगडम ऑफ गॉड में दाखिल हो जाओगे। यही पौलुस ने इन बदबख्तों को, मलऊनों को पाठ पढ़ा दिया है, और इन बदबख्तों ने उसी पर यकीन कर लिया। जबकि जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था? जीसस क्राइस्ट ने कहा था, Gospel of Matthew chapter 5 verse number 17, think not that I have come to destroy the law of the prophets, I am not come to destroy but to fulfill। यानी ईसा अलैहिस्सलाम इसमें कह रहे हैं, यसू मसीह इसमें कह रहे हैं कि देखो
मैं तौरात और नबियों के सहीफों को मनसूख करने नहीं आया हूं, बल्कि उनको मुकम्मल करने आया हूं। देखो यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं ओल्ड टेस्टामेंट को तो मैं मनसूख करने नहीं आया हूं, मैं तौरात को मनसूख करने नहीं आया हूं, मैं नबियों के कुतुब को सहीफों को मनसूख करने नहीं आया हूं, मैं तो पूरा करने आया हूं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि शरीयत मनसूख हो गई, उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि आगे यीशु मसीह इसी चैप्टर नंबर 5 में कहते हैं वर्स नंबर 18, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या नोश्ता तौरात से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से किसी को भी तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि अब देखिए ये पॉइंट बड़ा अहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, जीसस क्राइस्ट ये किनको कह रहे हैं? अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं, अपने ऑडियंस को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फिकही और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी, तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होंगे। जीसस क्राइस्ट इस पैसेज में यह कह रहे हैं कि तुमको ओल्ड टेस्टामेंट पर, तौरात और नबियों के सहीफों पर अमल करना, एक एक नोश्ते पर अमल करना जरूरी है, और इतना अमल करना है कि तुम्हें फिकहियों और फरीसियों यानी यहूदियों से भी नेक अमाल में आगे बढ़ जाना है, वरना तुम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात है, जीसस क्राइस्ट की तालीमात है, और इनको पौलुस ने क्या पढ़ा दिया? जीसस क्राइस्ट तुम्हारे गुनाहों के लिए मसलूब कर दिए गए, क्रूसिफाई कर दिए गए, बस तुमको यही मान लेना है कि वो 3 दिन बाद जी उठे मुर्दों में से, तुम्हें इटर्नल लाइफ हासिल हो जाएगी। ये सबसे बड़ा झूठ है जो पौलुस ने बोला है। जीसस क्राइस्ट के इस बयान से साबित हुआ कि ओल्ड टेस्टामेंट पर कि एक एक नोश्ते पर क्रिश्चियंस को अमल करना जरूरी है, जिसमें सुअर का गोश्त हराम है। सुअर हराम है ओल्ड टेस्टामेंट में, लेकिन ये लोग सुअर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि पौलुस ने कहा है ना। पौलुस ने क्या कहा है? सुनिए जरा, पौलुस ने क्या कहा है? 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 3 और 4 में पौलुस कहता है, ये लोग ब्याह करने से मना करेंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक को पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। फिर आगे पौलुस कहता है वर्स नंबर 4 में, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है। क्या कह रहा है? कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है। जब हम क्रिश्चियन से कहते हैं ना कि सुअर खाना तो ओल्ड टेस्टामेंट में हराम है, तो वो ऐसे ही रेफरेंसेस हमारे सामने लाते हैं कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज तो अच्छी है। अच्छा, इसीलिए ये लोग सुअर खाते हैं। अब जब सुअर खाते ही हो तो इसमें यह कहां लिखा है कि कुत्ता खाना हराम है? नहीं लिखा है ना। तो कुत्ता भी खाओ, चूहा भी खाओ, अपनी टट्टी भी खाओ, कहां लिखा है इसमें कि टट्टी खाना हराम है? खाओ, हराम खोरो। सांप खाओ, कीड़े खाओ, गंदी नाली के कीड़े खाओ, गटर के कीड़े खाओ, गटर खाओ, कहां लिखा है इसमें ये सब हराम है? पौलुस तो कह रहा है कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं, बशर्ते की शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए। ये लो क्या कह रहा है कि कोई चीज इनकार के लायक नहीं, खुदा की हर पैदा की हुई चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं। फिर कुत्ता भी, जब सुअर खाते हो तुम, सुअर खा लेते हो, फिर कुत्ता भी अच्छा है, खाओ कुत्ता, चूहा खाओ, गंदी नाली के कीड़े खाओ, अपनी टटी खाओ। कहां लिखा है इसमें कि यह हराम है? क्योंकि तुम लोगों के मुताबिक तो यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टामेंट को एबॉलिश कर दिया है, मनसूख कर दिया है, क्रूसिफाई होकर, उस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए तुम सुअर खाते हो ना। तो सुअर के साथ कुत्ता भी खाओ, टट्टी भी खाओ, गंदी नाली के कीड़े भी खाओ, चूहे भी खाओ, हर किस्म का गंद खाओ। कहां लिखा है इसमें हराम है? खा ना मादरचोद, खा। तू भी बकवास कर रहा है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबान दराजी कर रहा है ना। खा ये सब गंद, और देखता हूं मैं तू कैसे खाता है। अब अगर तू नहीं खाता ना तो तू असली हरामी है। ये हराम की नस्ल, गलीज पैदावार मर तो जाएगा, लेकिन कभी ये सब चीजें नहीं खाएगा। इनके हराम होने की बाइबल में कोई दलील नहीं है। पौलुस खुद कह रहा है कि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है, कोई चीज इनकार के लायक नहीं। तो फिर कुत्ता कैसे खाना नाजायज हुआ? यहां तो लिखा ही नहीं है कुत्ता खाना हराम है। खाओ कुत्ता, खाओ चूहे, खाओ गटर के कीड़े, खाओ अपनी टट्टी। कहां लिखा है इसमें? दिखाओ मुझे। आया हराम की नस्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जबान दराजी करने, बड़ा भड़वा कही का। हराम की नस्ल, हराम की पैदावार। ये जो मैंने लैंग्वेज इस्तेमाल की है इस वीडियो में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम नहीं करता, हम भी उसका कोई एहतराम नहीं करते। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। फिर ये उम्मीद रखना कि हम ऐसे आदमी की रेस्पेक्ट करेंगे, कोई सामने से बदजुबानी करेगा तो हम उसका नाम इज्जत से लेंगे, ये बात दिमाग से निकाल लो आप। जो भी गुस्ताखी करता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके हरामी होने में, नाजायज पैदावार होने में, गलीज पैदावार होने में कोई शक नहीं है। और ये जो लैंग्वेज इस तरीके से मैंने इस्तेमाल की है, इसका सबूत न्यू टेस्टामेंट में ही मौजूद है। बात बात पर न्यू टेस्टामेंट के जीसस क्राइस्ट
लान तान कर लेते हैं फिकियों पर, परीसियों पर। वो फिग ट्री पर बेमतलब ही लानत कर दी, आउट ऑफ सीजन था तब भी फिग ट्री पर लानत कर दी। बल्कि एक जगह तो यसु ने यहां तक कह दिया है कि मुझसे पहले जो भी आए हैं वो सबके सब कुत्ते हैं, नाउजुबिल्लाह। हमारा ये मानना है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कभी नहीं कहा। अब इनकी किताब में लिखा है, इनके कैनन में लिखा है, ये इसको वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, तो माने बाहर में जाए। लेकिन हमें ये अदब का पाठ मत पढ़ाना, क्योंकि खुद तुमने बदजबानी की है, गंदी जबान इस्तेमाल की है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी जबान इस्तेमाल करोगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। दोस्तों मुझे यहाँ पर इंजील मुकद्दस की एक बात बहुत पसंद आती है। तुम्हें यसु की ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि तुम मर तो जाएगा लेकिन इन पर कभी अमल नहीं करेगा, कभी इनको मानेगा नहीं। आउटडेटेड टीचिंग से, और खुद क्रिश्चियन इस बात को तस्लीम करते हैं कि आउटडेटेड टीचिंग से कैसे तस्लीम करते हैं, क्योंकि ये लोग इन पर अमल नहीं करते। इनका इन टीचिंग्स पर अमल न करना ही इनको आउटडेटेड करार देता है। इसीलिए तो ये जीसस क्राइस्ट को छोड़कर पौलुस को फॉलो करते हैं। तो आइए कुछ आउटडेटेड टीचिंग्स आपके सामने रखते हैं, जिनको ये मलऊन, ये गलीज पैदावार, हराम की पैदावार कभी भी अपनाने के लिए तैयार नहीं होगा, ना इन पर अमल करेगा और ना ही बाकी क्रिश्चियन इन पर अमल करने के लिए तैयार है। आइए शुरू करते हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में लिखा है, और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे। तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे आज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नुम में ना जाए। तो इस वर्स में जीसस क्राइस्ट ने यह बताया कि अगर तुम्हारे हाथ से कुछ गलत काम होता है तो हाथ को काट करके फेंक दो। इस्लाम में चोर की सजा अगर वो उस मिकदार तक पहुंच जाए, एक मिकदार मुकर्रर है उस तक पहुंच जाए, तो हाथ काट देना है। ये लोग ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इस्लाम को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इस मामले में कि देखो इतनी सख्त सजा है, इस्लाम बहुत सख्त रिलीजन है, ये इंसानियत के लिए कैसे हो सकता है, चोर को हाथ काट दिया फिर वो कैसे खाए पिएगा। यहां पर देखो ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ये भी तो वही कह रहे हैं, इंसान चोरी अगर करेगा तो किससे करेगा, हाथ से ही करेगा ना। तो क्या कह रहे हैं जीसस क्राइस्ट कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, फेंक दो काट कर अपने हाथ को। अगर किसी ने चोरी की, अगर किसी गैर मुहर्रम को छुआ, किसी गैर औरत को छुआ, यह भी गुनाह है, काट करके फेंक दो। किसी का हक मारा, अपना हाथ काट करके फेंक दो, इस पर अमल करने के लिए तैयार हो। ये हरामखोर जैसे जितने भी हैं सब के सब मर जाएंगे, लेकिन इस पर, इस तालीमात पर जीसस क्राइस्ट की कभी अमल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्स नंबर 31 में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं ये भी कहा गया था जो कोई अपनी बीवी को छोड़ेगा उसे तलाकनामा लिख दे। फिर वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो भी जिना करता है। ए लो भाई, फंस गए। मतलब अगर किसी क्रिश्चियन की बीवी ने किसी और के साथ जिना कर लिया, सिर्फ इस सूरत में तुम उसको तलाक दे सकते हो। अगर इसके अलावा किसी और बहाने से या किसी और गलती के बुनियाद पर तलाक दे दिया तो क्या कहते हैं यसु मसीह, और सबब से छोड़ दे वो उससे जिना कराता है। तो वो जो औरत है वो उससे जिना कराता है, और अगर वो छोड़ी हुई औरत किसी और से शादी कर ले वो जिना करता है। लो क्या टीचिंग्स है, ये वो टीचिंग्स है जो इनको चर्च में नहीं पढ़ाई जाती, संडे क्लासेस में नहीं पढ़ाई जाती, ना ही ये यूट्यूब पर आकर बोलते हैं कि यसु ने ऐसा कहा है, यसु ने वो कहा है। अच्छा करो इन पर अमल। अगर किसी क्रिश्चियन मियाँ बीवी की नहीं बनती, उनका तलाक हो जाता है, तो वो पहले तो छोड़ ही नहीं सकते, भले वो उसको मारता पीटता हो, उनके आपस में ना भी बनती हो, मोहब्बत हो भी, नफरत भी हो सकती है, लेकिन वो उसको छोड़ ही नहीं सकता। अगर छोड़ दिया तो जिना करता है, और अगर फिर उस जिसको छोड़ा है उसने किसी और से शादी कर ली तो वो भी जिना करता है और करती है। मतलब औरत का तो कोई हक ही नहीं बनता ना, वो अपनी जिंदगी जीनी चाहे किसी और के साथ, लेकिन उसको इजाजत ही नहीं। अगर उसने किसी और के साथ कर लिया, शादी कर ली उसने तलाक के बाद, तो वो जिना करती है, और जिसने उसके साथ शादी की है वो जिना करता है। जाओ जहन्नुम में, करो इन पर अमल। देखता हूं तू और तेरे घर वाले और जितने तेरे जैसे अकल के अंधे गधे हराम की नस्ल है ना, देखते हैं इन टीचिंग्स पर अमल करते हैं या नहीं। कर अमल, मर जाओगे टट्टी खोर कहीं के, सुअर खोर कहीं के, लेकिन इन पर अमल नहीं करोगे। तुम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तालीमात आउटडेटेड है। इसीलिए खुद क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट की इन तालीमात पर अमल नहीं करते, और उनके पास अमल करने के लिए कौन सी पर्सनैलिटी बाकी रह जाती है। शादी और तलाक के मामले में भी क्रिश्चियन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करते हैं, ना कि जीसस क्राइस्ट को। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने अपनी बीवी को बगैर जिनाकारी के छोड़ दिया
तो वो उससे जिना कराता है, और अगर फिर उस औरत ने किसी और से शादी कर ली तो वो जो उससे शादी करता है वो भी जिना करता है और वो औरत भी जिना करती है। मतलब क्रिश्चियनिटी में औरत के लिए कोई ऑप्शन नहीं है और मर्द भी गुनाहगार हो जाता है अगर बगैर जिनाकारी के औरत को छोड़ दिया। तो इस मसले पर मैं अपने व्यूअर्स से सवाल करता हूं, क्या आपको लगता है कि क्रिश्चियंस इस तालीमात पर अमल करते हैं? जीसस क्राइस्ट की इस तालीमात पर ये लोग अमल करते हैं? नहीं, ये लोग चूंकि इस मसले में फंस गए हैं इसीलिए ये लोग इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल करते हैं, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। इसलिए तो ये लोग दूसरी शादी करते हैं, अगर तलाक हो जाए तो दूसरी शादी करते हैं। इनकी औरतों का भी अगर तलाक हो जाए तो ये भी उसकी दूसरी शादी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इसका कोई हल नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में ही इसका हल है। तुम लोगों के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। हराम की नस्ल, पहले अपनी इस बाइबल में पड़ी हुई गलाजत को देख, भरवे की औलाद, गलीज पैदावार। मजीद सुनिए क्या कमाल की टीचिंग से। ये जो इस वक्त मैं रेफरेंस पढ़ने वाला हूं ना, इसको क्रिश्चियंस बहुत खुशी के साथ कोट करते हैं। देखो हमारे यीशु मसीह वो जो है प्रिंस ऑफ पीस थे, उन्होंने इतनी अच्छी तालीमात दी है। अगर कोई तुम्हारे दाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल आगे कर दो, बाएं गाल पर थप्पड़ मारे तो दायां गाल आगे कर दो, मतलब मार खाते ही रहो। अच्छा, अमल करने के लिए तैयार हो? करो अमल, इस पर करो, इस पर अमल। इसको कोट करते हो ना, क्रिश्चियनिटी इज द रिलीजन ऑफ पीस। अच्छा, मैं मुसलमान भाइयों से कहता हूं किसी क्रिश्चियन पर क्या, सारे क्रिश्चियंस पर इसको अमल करो। आप किसी को एक थप्पड़ मारोगे ना, फिर देखते हैं वो दूसरा गाल आगे करता है या नहीं, और अगर वो कर भी लेता है ना तो दूसरे पर भी मारो, फिर दोबारा से मारो। देखते हैं कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। इम्तिहान है ना ईमान वाला होने का, क्रिश्चियन होने का, तो लो इनका इम्तिहान और देखो कितना टेस्ट पास करते हैं ये। कब तक ये इस पर अमल करते रहेंगे, कब तक ये थप्पड़ खाते रहेंगे, कब तक मार खाते रहेंगे, जलील होते रहेंगे। ये इस पर कभी अमल नहीं करेंगे। जब इनको एक तरफ से पड़ती है ना तो फिर ये दूसरा गाल आगे नहीं करते, हम जानते हैं। ये कर अमल, हराम की नस्ल, तू मर जाएगा लेकिन कभी अमल नहीं करेगा इस पर। तेरे जैसे जितने भी गलीज पैदावार है ना, हराम की नस्ल, वो भी मर जाएंगे लेकिन कभी इस आउटडेटेड टीचिंग पर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि आउटडेटेड है। इसीलिए तुम लोग जीसस क्राइस्ट को छोड़कर पौलुस को फॉलो करते हो, इसको बड़ा कोट करते हो ना, लेकिन इस पर अमल करने के लिए तुम कभी तैयार नहीं। न्यू टेस्टामेंट के यीशु ने जीसस में एक सच्चे मसीही की एक बहुत बड़ी निशानी बयान की है। वो ये गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 और 18 में लिखा है, और ईमान वालों के दरमियान ऐसे ऐसे मोजे होंगे, वो मेरे नाम से बदरूह को निकालेंगे, नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हवा करने वाली चीज पिएंगे तो वो उन्हें कोई जरर न पहुंचाएगा। यानी इसमें यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि ये ईमान वालों की निशानियां हैं, ईमान वालों के दरमियान मोजे होंगे। तो वो ईमान वाले कौन होंगे? जो बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, स्पेशली न्यू टेस्टामेंट को वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं, वो बिलीवर्स कौन है? वो है अपने आप को कहने वाले क्रिश्चियन, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उनको अपना गॉड मानते हैं और इसे वर्ड ऑफ गॉड मानते हैं। तो मेरा चैलेंज है इस भड़वे को, आ और इस पर अमल करके दिखा और खुद को सच्चा क्रिश्चियन मसीही साबित करके दिखा, और जीसस क्राइस्ट को सच्चा साबित करके दिखा, क्रिश्चियनिटी को सच्चा मजहब साबित करके दिखा, और इसको वर्ड ऑफ गॉड साबित करके दिखा। आ और इस पर अमल कर। अब जाहिर सी बात है, पी जाने वाली, हलाक करने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? जहरी कहते हैं ना। तो आ वाज़ह तौर पर लिखा है यहाँ पर, और अगर वो कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो उससे कोई जरर नहीं पहुंचाएगा। तो हलाक करने वाली चीज जहर ही है ना। तो आ और जीसस क्राइस्ट की इस तालीमात पर अमल कर। वर्स नंबर 17 में क्लियरली लिखा है, और ईमान वालों के दरमियान ये मोजे होंगे। तो ईमान वाला है ना, जीसस क्राइस्ट को गॉड मानता है ना, जीसस क्राइस्ट की बातों को वर्ड ऑफ गॉड मानता है ना, तो आ जीसस क्राइस्ट को भी सच्चा साबित कर, इसको वर्ड ऑफ गॉड सच्चा साबित कर, खुद को सच्चा मसीही क्रिश्चियन साबित कर। अगर नहीं तो तू हराम की नस्ल हरामी है। अगर तू ऐसा नहीं कर पाया तो क्रिश्चियनिटी एक फॉल्स रिलीजन है, ये किताब वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, और जीसस क्राइस्ट भी वो गॉड साबित नहीं होते, बल्कि इसके मुताबिक तो वो झूठे साबित होते हैं। अगर तू इस टेस्ट में पास नहीं हो पाया, आ और तेरे जैसे जितने भी हैं आओ और इस टेस्ट पर अमल करो और खुद को सच्चा साबित करके दिखाओ, खुद को सच्चा मसीही साबित करके दिखाओ। ऊपर वर्स नंबर 17 में वाज़ा लिखा है कि ईमान वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, यानी ये मौजज़ा है। जाहिर सी बात है, कोई जहर पिएगा लेकिन उसको कुछ होगा नहीं, वो जिंदा रहेगा, तो जाहिर सी बात है मौजज़ा है। तो आ और पी और साबित कर कि तू सच्चा क्रिश्चियन है, तू जीसस क्राइस्ट की तालीमात को फॉलो करता है, और ये वर्ड ऑफ गॉड है। और अगर तू नहीं कर पाया तो तेरे हरामी होने में कोई शक नहीं होना चाहिए उन क्रिश्चियन व्यूअर्स को भी जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं। शेख अली अताई हफिज़हुल्लाह, डॉक्टर अली अताई हफिज़हुल्लाह ने डेविड वुड के सामने अपने एक डिबेट में यही वर्ड्स पेश की थी और कहा था कि आओ और इसे वर्ड ऑफ गॉड साबित करो। तो डेविड वुड मलऊन को पता था कि वो जहर पीकर मर जाएगा,
तो डेविड वुड ने क्या किया, डेविड वुड ने ये बात एक्सेप्ट की कि ये जो पैसेज है ये इंटरपोलेशन है, ये बाद में लोगों ने डाल दिया है, ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये पैसेज नहीं है। तो इन मलऊनों के पास और इस भरवे के पास भी इस बात के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता कि ये पैसेज जो है ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, बाकी लोगों की इंटरपोलेशन से बाद के लोगों ने डाल दिया है। तो अगर ये इस बात को साबित करता है तो जाहिर सी बात है न्यू टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड नहीं रहता, क्योंकि अगर ये इंटरपोलेशन है बाद के लोगों ने डाल दिया है तो सोचो लोगों ने बाद के लोगों ने न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट की तरफ क्या क्या झूठ मंसूब किए होंगे, कौन कौन सी बातें मंसूब की होंगी जो जीसस क्राइस्ट ने कभी कही ही नहीं। तो इससे ये साबित हो जाएगा कि न्यू टेस्टामेंट इंटरपोलेशन से भरा पड़ा है, ये वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। इंजील तहरीफ हो चुकी है, बाइबल तहरीफ हो चुकी है और इसके पास ये बात एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी बात से इसकी जान बच सकती है, वरना आए और साबित करे यीशु ने सच कहा है और ये सच्चा क्रिश्चियन है और बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। देखिए अगर ये जहर पीने के बाद बच जाए, लेकिन याद रखना कोई दवाई वगैरह नहीं लेनी है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इसमें। ये और इस जैसे बढ़ गए अक्सर ना, एक हदीस है सही बुखारी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अजवा खजूर सुबह के टाइम पर खा लिया तो शाम तक उसको जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और अगर शाम को खा लिया कौन सा अजवा खजूर तो सुबह तक उसको जादू और जहर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये और इस जैसे भड़ गए कुछ क्रिश्चियंस इस हदीस को हाईलाइट करते हैं कि देखो तुम्हारे नबी ने कहा है कि अगर तुम जहर पियोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बच जाओगे, आओ और अपने नबी को सच्चा साबित करो, जहर पी कर दिखाओ, देखो अगर तुम नहीं मारे। हालांकि इसमें शर्त लगाई गई है कि अजूबा खजूर खाए हो, अगर सुबह के टाइम पर खाए हो तो शाम तक कुछ नहीं होगा, और अगर शाम के टाइम पर खाए हो तो सुबह तक कुछ नहीं होगा। तो पहले अजूबा खजूर खाने की शर्त हदीस में मौजूद है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम जहर पियोगे तो कुछ नहीं होगा, जादू नहीं होगा, नहीं, पहले अजूबा खजूर खाने की शर्त लगाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर कोई खाता है तो उसको सुबह खाता है तो उसको शाम तक जहर और जादू असर नहीं करेगा, इसी तरह शाम को खाता है तो उसको सुबह तक जहर और जादू असर नहीं करेगा। यहाँ शर्त लगाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजूबा खजूर खाने की, यानी पहले खजूर खाए और वो भी अजूबा खजूर। लेकिन गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 17 में यीशु कह रहे हैं कि ईमान वालों के दरमियान ये मौजूद होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, यानी ईमान वाले ऐसा करेंगे। कौन? क्रिश्चियन ऐसा करेंगे, वो नई नई जबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो वो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचाएगा। तो पियो जहर, पी कर दिखाओ और सच्चा साबित करो यीशु को, और इस किताब को वर्ड ऑफ गॉड साबित करो। अगर नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी फॉल्स, न्यू टेस्टामेंट वर्ड ऑफ गॉड नहीं है और तुम हरामी साबित हो जाओगे अपने क्रिश्चियन व्यूअर्स के सामने भी। ऐसी सिचुएशन में हर क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर ही अमल करेगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इस मसले का कोई हल नहीं। लिहाजा तुम लोगों के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो चूंकि ये लोग पौलुस को फॉलो करते हैं जो कि एक झूठा मक्कार धोखेबाज था, जिसने लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बुलाकर अपना फॉलोअर बनाया, उनको अपनी तालीमात पर अमल करवाया और अपने पीछे लगा लिया, तो बेशक ये लोग तो कुरान हदीस को मिसकोट करेंगे ही। ये इस्लाम की वो तालीमात कहां दिखाएंगे जो हक है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मरदूद रिवायात पेश करके या मिसकोट करके कुरान हदीस को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपनी असलियत भूल जाते हैं, अपनी गलाजत भूल जाते हैं। बाइबल में इंसेस्ट यानी मुहर्रमात का आपस में मुंह काला करना, इसमें आपको कहीं पैसेजेस मिल जाएंगे, और क्रिश्चियंस लोग इंसेस्ट पर अमल भी करते हैं। ये लोग स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर के नाम पर अपनी माओ, बहनों, बेटों के साथ सो जाते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक की गलीज नस्ल होगी, गारंटी के साथ कहता हूं मैं, क्योंकि ये सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते ही नहीं। लिहाजा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदवारी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और ऐसी उम्मीद हम मुसलमानों से भी मत रखना, खासतौर पर मुझसे भी मत रखना कि हम आएंगे कमेंट सेक्शन में गालियां देंगे या वीडियोस के जवाब में गालियां देंगे तो ये लिहाज करेगा। ये वीडियो देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त करे। काश मेरे हाथ इस तक पहुंचते तो मैं इसकी गर्दन काट देता, लेकिन ये मेरी पहुंच से बाहर, ये पाकिस्तान का है, और मैं पाकिस्तान के उन उलमा का जो साहिब इख्तिदार है मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे एक दरख्वास्त करता हूं कि इस हराम की गलीज पैदावार को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इस गुस्ताखे रसूल को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसे जहन्नुम वासिल कराया जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए मेरे मुसलमान भाइयों, फी अमानिल्लाह।